ओके मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाली, हम केवा पुण्यशाली, भगवाननी भूमिका आदेहेन निहारी। भगवाननी भूमिका प्रिया मुट्टी अमे केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नी पारी। ज्ञानी पुरुष पासे अमे केवा पुण्यशाली, आगम स्वरूप थाओ, ए मार्ग मुक्तिनो छे। आगम स्वरूप थाओ, ए मार्ग मुक्तिनो छे। सप्त क्रमशमामु आस्वाद शुद्धिनो छे। क्षमागु आस्वाद शुद्धिनो छे। आस्वाद शुद्धिनो छे। शुद्धिनो छे। बांधानी वच्च काशव, अज्ञान मान्यताओ एने दीवडावी। अमे केवा पुण्यशाली, केवा पुण्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद के 1 मिनट 9 के 9 कलमों। खुशी आई है, दूसरी खुशी आई है। ओके मोनिका, जय सच्चिदानंद। yeah, you continue till somebody comes. Priya say something. Jai Sachidan. Priya? Shreya? Okay. Okay, Shreya, number 1, now. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मने कोई पण देहधारी जीवात्मानो किंचित मात्र पण अहम न दुभाय, न दुभावाय के दुभाववा प्रत्ये न अनमोदाय एवी परम शक्ति आपो। મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। જય સચ્ચિદાનંદ। मोनिका दीदी। हे दादा भगवान, मने कोई पण धर्म नो किंचित मात्र पण परमान न दुभे
ના દુભાય દુભા પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાન ન દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Okay. Number 3, Shreya. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Monica, number 4. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ના કિયા જાય ન કરવાયા જાય કરતા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Number 5, Shreya. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Monica, number 6. હા, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ યા નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કરતા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Kushi, Ahmedabad, number 7. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Shreya, number 8. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ વગર પરોક્ષ જીવંત મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Divya, number 9. હે દાદા ભગવાન, પરમ શક્તિ આપો. Very good. Sachchidanand, Kushi, Siddharth Mahapati prayer. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ પ્રગટ સ્વરૂપે વિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવ કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરીથી એવા દોષો ક્યારેય પણ ના કરું એવી આપ મને પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. Right, very good. Pradeep Dada, Jai Sachchidanand. जय सच्चिदानंद. श्री मंत्र बुलाए, बाढ़ को फॉलो करेंगे. नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો અરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો નમો આયર્યાણમ, नमो वज्जायाणम, નમો વજ્જાયાણમ, नमो लोये सव्व साहुणम, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચનમુક્તારો, सव्व पावपणासणो, સૌ પાવપણાસણો, मंगलाणम च सव्वेसीम,
परमं हवै मंगलम। मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और गुस्सम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन कार्य का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल पवित्र यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया। पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। श्रेया। दिव्या। हे दादा भगवान। Akshay not audible. हाँ, मैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल में है सच्चे, फिर भी Okay, very good. Avyay, Dada Bhagwan separation prayer. Hindi. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हैं, अव्यय अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल है, अव्यय रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट है, अव्यय टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। Chinay. जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદા છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। जय सच्चिदानंद। Very good. Okay, आज होमवर्क में किसने सुपर ब्रेन योगा किया था, कितना किया? और अभी मिड टर्म का एग्जाम है, तो आपको कितना स्कोर करने का है कि आप क्या करते हैं उसके बारे में? क्या मोनिका? जय सच्चिदानंद। आज मैंने सुपर ब्रेन योगा 20 टाइम्स की थी और मेरी अभी आने वाली एग्जाम 26 को है। क्वार्टरली एग्जाम है, तो इसके लिए और एक और एग्जाम अभी भी आ रही है, 19 को स्टार्ट हो रही है, वो मिड टर्म है। तो इसके लिए मैंने मैथ्स में तैयारी की है। मैं डेली उसमें 15 सम्स करती हूँ और तमिल में भी मैं हर रोज रिविजन करती हूँ। तो कितना एवरेज स्कोर कितना लाने का है? 80% अबव। About 80%. Okay, करिश्मा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने सुपर ब्रेन योगा 30 टाइम्स की थी और अभी मुझे 19 को क्वार्टरली एग्जाम आने वाली है, तो उसके लिए मैंने तमिल और इंग्लिश सब सब्जेक्ट में मैंने तैयारी की है।
ओके, और सोशल स्टडी में, साइंस में हाँ ठीक ठीक। ओके, कितना मार्क्स लाने का है? 60 मार्क के हैं तो मुझे 50 अबव लेकर आना है। अबाउट 60। क्यों 60 पसंद किया? सुपर योगा नहीं करते आप? ओके श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने सुपर ब्रेन योगा 30 टाइम्स किए और मेरी मिड टर्म एग्जाम कल से शुरू होने वाली है, उसमें मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की है। कितना स्कोर लाने का है? 50 मार्क्स की है तो 45 के अबव। हमको परसेंटेज बोलना, हमको दूसरा मैथ 90 नहीं आता। plus। अबव 80%। ओके, हमको मैथ नहीं आता है बच्चे लोग, हम बम बुद्धू है, तो परसेंटेज हमको मालूम पड़ता है। खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने सुपर ब्रेन योगा में अभी करूंगी और मेरी एग्जाम का एग्जाम में अभी मुझे सब में तैयारी चल रही है और मेरी 10 तारीख को एग्जाम्स है। कब? 10 सितंबर को, अक्टूबर को? हाँ तो नवरात्रि कब है? 26 डेट को। ओ, नवरात्रि के बाद एग्जाम होती है? हाँ इंटरेस्टिंग। अव्यय। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने सुपर ब्रेन योगा 20 टाइम्स किया है और मेरी एग्जाम सेकेंड टर्म की 26 नवंबर को है, तो अभी से ही मैं सारी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ। कितना परसेंटेज लाने का है? 100 मार्क्स की एग्जाम है तो 100 ही लाने की कोशिश। ओह क्या बात है, वेरी गुड, गुड लक। और आप लेट क्यों आते हैं? हाँ, और दरअसल आप क्यों लेट क्यों आते हैं? प्रेसिडेंट मोदी को मिलने जाते हैं एवरीडे आप? नहीं, तो बहुत काम करते हैं। अभी से जल्दी आऊंगा। ओके ओके, दरअसल बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज सुपर ब्रेन योगा 20 टाइम्स किया था और मेरी एग्जाम 19 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। उसके लिए मैंने मैथ्स में प्रिपरेशन की है। और कब एग्जाम होने वाली है? 19 सितंबर। और कितना मार्क्स लाने का ओवरऑल? 85 अब। 85। ओके, इताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, आज सुबह को मैंने सूर्य नमस्कार किए थे 5 टाइम्स और 30 टाइम्स सिटअप्स की थी और इस बार मेरी एग्जाम 6 नवंबर को शुरू हो रही है, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन 6 अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दी है। कितना मार्क्स लाने का है? इस बार मुझे 91% टॉप मार्क्स लाना है। वेरी गुड। ओके, तो बराबर सब तैयारी करना, योगा अच्छा करना, योगा। ओके ओके, दीपकानंद जी, एवरीबॉडी prepare for exam. Right, जय सच्चिदानंद। फर्स्ट थिंग मैं मेरा भी स्कोर बता देता हूँ, एटलीस्ट सुपर ब्रेन योगा का 60 प्लस, because I do 11 times every time, so 60 plus. ये प्लानिंग जो हम करते हैं, जो हमने हमारे एक बड़े मिनट भाई से दीपकानंद जी, सीखा। एक खुशी बाकी रह गई, चेन्नई, सॉरी। हाँ ओके, वो चेन्नई लेट क्यों आती है? पहली बात, मम्मी का काम करता है क्या? क्या करता है आज? आज पापा ने बुलाया था, पापा का कुछ काम था इसलिए जाकर ओके ओके ओके, आप बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरी एग्जाम्स 26 को स्टार्ट हो रही है और उसके लिए मैंने मैथ्स में प्रिपरेशन हाफ प्रिपरेशन मैंने कर दी है
और तमिल में भी मैंने कंप्लीट करने वाली हूँ मेरी प्रिपरेशन, और इंग्लिश मेरी कंप्लीट हो गई है, सोशल और साइंस की थोड़ी बाकी है, और मैंने आज तक ब्रेन योगा 20 टाइम्स किया है। ओके, कितना मार्क्स लाने का है? मुझे 60 मार्क्स की एग्जाम है, मुझे 50 अप लाना है। ओके, दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। पहले तो हमारा सुपर ब्रेन हो गया 60+, और हमने हमारे भाई साहब से सीखा कि एग्जाम है, जब से एग्जाम होती है तो उसका बैक कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज करके प्लान करना है, और उसके लिए बड़े अच्छे से प्लानिंग जरूरी है। तो उस तरह से आपके जो सब्जेक्ट वीक है उसको पहले कंप्लीट करो, फिर जो स्ट्रांग है उसके लिए इस तरह से कंप्लीट करो, तो हमारे इजीली परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, प्रदीप दादा आपने सुना? जी। आप बातें करो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। हाँ बस अभी तो सब बच्चे ने तैयारी कर दी है, प्लानिंग बनाया है, तो दादा को प्रार्थना करके आप सिंसियर रहना बस। कोई भी हिसाब है, हमें जो भी एक बार डिसाइड किया है तो पूरा हमें सिंसियर रहना है, और जो जो बाधाएं बोलते हो तकलीफ आती है तो उसको हमें कैसे आगे पीछे करके भी हमारा जो डिसाइड किया हुआ जो प्लान है वो हमें पूरा करना है। तो दादा भगवान को प्रार्थना करके आप बैठना, और जहाँ भी जरूरत लगे तो दादा से शक्ति मांगना कि दादा प्लीज हेल्प मी। ओके ओके, तो एक क्वेश्चन मैं भूल गया पूछना कि आप स्टडी प्रेयर कितना एवरीडे कितना करता है? क्योंकि अभी तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कूल में, क्लास में, घर पे जब स्टडी करो तो करना मांगता है, तो एवरेज कितना होता है अभी? दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा एवरेज मैं एक दिन में 3 बार करता हूँ। वो तो इनफ नहीं है। कितना सब्जेक्ट है आपका? 6। तो 6 तो भाई मिनिमम 6, और घर पे आके होमवर्क ओके वो बढ़ाओ, वो परसेंटेज कैसे आएगा? अव्यय 100% कैसे आएगा? कितना आप करते हैं मैं स्टडी? 5 बार स्टडी प्रेयर करता हूँ। कितना होता है दिन में? 5 बार। इदाक्षी बा? मेरा तो मिनिमम 30 टाइम्स होता है, क्योंकि जब नहीं समझ में आता है तब करती हूँ, करने बैठती हूँ तब करती हूँ। वेरी गुड। मोनिका? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा मिनिमम है 8 बार। 8। करिश्मा? करिश्मा तो नहीं करती, हमको मालूम है। खुशी अहमदाबाद चेन्नई? हाँ मैं मिनिमम 8 टाइम्स करती हूँ, 8 7। एवरी डे? हाँ। और श्रेया? हाँ, मैं स्टडी प्रेयर 7 टाइम्स करती हूँ। खुशी? अहमदाबाद? 6 times. देखो बच्चे लोग, स्टडी प्रेयर में क्या होता है? हाँ, कौन बताएगा? ओके, खुशी, स्टडी प्रेयर में क्या आप प्रे करते हैं? हाँ, जो स्टडी प्रेयर में हम जो स्टडी प्रेयर बोलते हैं तो वो हम बोल के पढ़ने बैठते हैं, तो हमें तुरंत याद भी रहता है, और हमें जो नहीं समझ में आता है वो भी समझ में आने लगता है। ओके, तो एक पहला सेंटेंस क्या है स्टडी प्रेयर में? हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधा या अंतराय आते हैं वो वाला है। हाँ, तो ये इसका मीनिंग मालूम है? किसको मालूम है मीनिंग इसका? दरअसल इसका मीनिंग क्या होता है?
प्रदीप दादा इन लोग को बताए इसका मीनिंग क्या होता है। अभी मतलब जो हमें पढ़ाई में मुश्किलें आती है और वो हमें जो बाहर से भी आती है, शरीर में भी आती है और अंदर जो समझ में नहीं आता है वो अंतराय है। मतलब कि हम समझना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, फिर भी वो हमारा मन, बुद्धि, चित्त आगे पीछे हो जाता है। ये सब बाधाएं होती है। तो फिर हमें वो कैसे, वो जो चीज हमें करना है उसमें हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता है। आपको समझ में आया? हाँ। तो हमें ये सब इंटरनल सिस्टम है और एक्सटर्नल भी है जो बाहर से हमें तकलीफ आती है। जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो, आपको समझ में आया ना? कोई जोर से कुछ बातें करता हो, कुछ म्यूजिक बजता हो, हमारा घर रोड पर है तो रोड पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उनकी आवाज आती है तो हमारा कंसंट्रेशन सब उधर चला जाता है। आपको समझ में आया ना? तो वो सब बाधाएं और ये सब आती रहती है। लेकिन हमें ये हर चीजों को प्रार्थना करके बैठेंगे और आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है कि जो एक बार आप उसमें, एक बार आपका चीज स्थिर हो गया तो बाहर की चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगी। आपको समझ में आया ना? तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो हमें कैसे दादा को प्रार्थना करते करते हमें आपको सब करना है तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। समझे? जैसे मैं आपको बताऊं कि हम नमो अरियंताणम बोलते हैं तो समझो कि ये जीप अंदर मूवमेंट्स करती है और आवाज निकलती है नमो अरियंताणम, तो फिर कैसे त्रिमंत्र पूरा हो जाए पता नहीं चले। लेकिन जब आप चित्त की हाजिरी में नमो अरियंताणम पढ़ोगे तो आपको इतना काय आजू बाजू कितना भी कुछ डिस्टरबेंस हो, लेकिन आपको नमो सिद्धाणम, नमो आयरम, क्योंकि आपकी वो चित्त की हाजिरी है, वो प्रेजेंस में आप पढ़ते हो तो आपको अंदर एक अलग अनुभव होता है। आप समझे ना? तो ये पढ़ाई में भी हमारा कंसंट्रेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन ये आप दादा को प्रे करना और आपका जो निश्चय है वो बहुत मजबूत होना चाहिए कि अभी मैं 1 घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ना है तो दादा के पास शक्ति मांग के बैठना चाहिए कि दादा मुझे 2 घंटा बराबर ध्यान से पढ़ना है, प्लीज मुझे हेल्प करना, मुझे शक्ति देना। तो फिर जितने भी हमारे पढ़ाई में डिस्टरबेंस वाला जितना भी वातावरण हो तो उससे हमें थोड़ा जितना प्रैक्टिकल हो सके इतना इससे हमें दूर रहना चाहिए। उसको बोलते हैं कि समय का प्लानिंग, कौन से समय में कैसे हमारा काम कर पाए, वो भी एक विजन की जरूरत होती है। आप समझे ना? जैसे घर में ऐसा वातावरण हो तो हम कुछ लिखने का काम कर सकते हैं, लिख करके हम हमारा स्टडी कर सकते हैं। फिर भी एकदम सब जो शुभ शांत हो जाता है तो हम रूम में बैठ के आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो हमें ये हमारी प्रकृति के साथ हमारा कैसे कैसे हमारा काम निकालने के लिए टेक्निक यूज करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। बराबर? दीपक आनंद जी साहब, आप कुछ बताना, कुछ मिसिंग हो तो। राइट, करेक्ट करेक्ट, तुमने बता दिया। और ये लोग जो नहीं समझते हैं तो दर्शन यानी हमारी समझने की शक्ति, दर्शन का मतलब है हमारी समझने की शक्ति। तो दर्शन ऊपर के आवरण जो भी आते हैं उसको तोड़ने की शक्ति हम दादा से मांगते हैं ताकि हम हमारे जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसे अच्छे से समझ में आ जाए। रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, मुख पाठ नहीं करना है, समझना है। और समझेंगे तो आप कभी भी उसको लिखना है तो आप लिख पाएंगे अच्छे से। इसीलिए ये शक्ति मांगते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबको मालूम पड़ गया? हाँ। हाँ, ओके। तो वो शक्ति कैसे मिलती है, किसको मालूम है?
ओके दर्शन, दादा को प्रार्थना करने से। ओह वेरी गुड। प्रदीप दादा थोड़ा शॉर्ट में बताइए, शक्ति ऐसे कैसे दादा कैसे देते हैं? देखो, शक्ति हर इंसान के अंदर है, ऐसा दादा भगवान बताते हैं। लेकिन दादा भगवान के अंदर सभी शक्तियां खुली हो गई थी। तो पहले हमें दादा के प्रति थोड़ा श्रद्धा आना जरूरी है कि मैं दादा के पास प्रार्थना करूंगा तो मुझे शक्ति मिलेगी, एक पॉइंट। दूसरा, हम शक्ति मांगते तो सिर्फ ये जीभ चलती है ऐसा नहीं चाहिए, उनको बाय हार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमें कोई भी चीज पढ़ाई करना हो, कोई भी काम करना हो, विधि बोलना हो, तो वो बाय हार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जितना आप बाय हार्ट करोगे तो ये शक्ति अपने आप विस्फोट होती है। आप समझे ना? उसमें दादा की कृपा और खुद का निश्चय, नक्कीपना, ये सब उसमें काम करता है। क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि ये शक्ति हम क्या, हमारे क्या समझ के साथ है। तो क्या गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल। हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं और वो अनंत शक्ति का धाम है, अनंत सुख का धाम है। लेकिन इसके प्रति जो श्रद्धा आनी, वो सबका अलग अलग रहता है। तो एक बार अगर आपको पता चल गया कि दादा भगवान मेरे अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं और मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, जो आप एक बार डिसाइड करोगे तो ये शक्ति खुली होती जाएगी। क्योंकि शक्ति को तो खुलना है ही, लेकिन उनको ऐसा कुछ एविडेंस मिलना चाहिए तो वो खुलती है। लेकिन हम समझ जाए कि मैं सब कर लूंगा, मुझे सब याद रहता है, मैं होशियार हूं, तो वो जो अंदर जो विपरीत बुद्धि का जो फंक्शन काम करता है, जो ईगो का काम करता है, उससे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। चाहे कितना भी आपने 90% मार्क्स का आपने अनुमान किया हो और 95 भी आ जाए, लेकिन फिर भी थैंक्स किसको बोलना चाहिए? दादा भगवान को। तो वहां हमारा विनय धर्म है। क्योंकि विनय से आदमी ऊपर चढ़ता है, और जब खुद के पर ईगो, मैंने सब किया ऐसा करके जो वो ईगो करता है, तो वो गिरने का स्कोप है। इसीलिए ये दादा को क्रेडिट देना हो तो बहुत जागृति और बहुत समझ के साथ ये जीवन जीना चाहिए हमें। दूसरा कि हमारी जितनी समझ बढ़ती जाएगी कि ये कैसे 95% आते हैं, वो जब आपको थोड़ा समझ में आएगा ना, तो आपका ईगो कभी भी खड़ा नहीं होगा। आप हमेशा विथ रिस्पेक्ट आप सबके साथ हर संजोग में आप डीलिंग कर पाओगे। उनको वो बोलते हैं कि आप नॉर्मल रह सकोगे, नो अबव नॉर्मल, नो बिलो नॉर्मल, कम टू द नॉर्मलिटी। और दूसरा जो है वो हमें और भी आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो कि मैंने 95 आया तो 5% कम क्यों आए, तो मेरी क्या गलती है? वो हमें गलती ढूंढनी है। आप समझ रहे? किसी के साथ कंपटीशन में नहीं जाने का। जिस आदमी को आगे बढ़ना है, तो दादा को खुद के गोल को लक्ष्य में रख करके खुद की गलतियों को देखते जाओ, उसको सुधारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। लेकिन किसी की कंपैरिजन में नहीं आने का, मतलब वो क्या बोलते हैं, रेस कोर्स में नहीं आने का। आप समझे ना? क्योंकि हरीफाई ऐसी चीज है, उसमें हमारी बहुत सारी शक्ति टूट जाती है। इसलिए हम खुद दादा भगवान का मिले हैं, सत्संग मिला है, हमारे अंदर भगवान बैठे हुए, हमारे पास और दूसरी जिम्मेदारी है नहीं कुछ, सिर्फ पढ़ाई की है, तो उसमें सिंसियर रहना चाहिए। आप समझे ना? तो मुझे पता है कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ऐसी आत्मिक शक्ति है, उसको निश्चय शक्ति भी बोला जाता है, आत्मिक शक्ति बोला जाता है।
तो कोई रोक नहीं सकता हमें। लेकिन आप जो अंदर से डर जाओगे, अरे यार मैं कैसे कर पाऊंगा, इतना दिन है, ये आवाज होता है इसीलिए मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, पढ़ नहीं सकती हूँ, इनके कारण ऐसा हो गया है, वो सब जो वो हमारी जो कमजोरियां है ना, उसके सामने हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आप सबको, हम सबको, मुझे ज्ञान के लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको पढ़ाई के लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और हम सबको पुरुषार्थ करना है। बराबर? ठीक है, हाँ सबको और विधि दीदी आज कैसा रहा क्विकली? आज अच्छा रहा था। वैसे मत बोलो अच्छा बुरा, क्या हुआ? अच्छा मतलब हाँ, आज वो हमारे 3 लेक्चर थे, उसमें पूरा एनवायरनमेंट के बारे में बताया था कि हाउ टू सेव एनवायरनमेंट, कि हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, पॉलीथीन का कम यूज करना चाहिए, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हम कम यूज कर सकते हैं, जैसे ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, इसलिए हमें हाउ टू सेव अवर वर्ल्ड, लाइक ऐसा सब कुछ समझाया था उन्होंने। और सेकेंड लेक्चर में आज साइकेट्रिस्ट आए थे, तो उन्होंने एग्जाम फोबिया के बारे में बताया था कि हमें एग्जाम का फोबिया क्यों होता है। तो मतलब ऐसा हमने तैयारी नहीं की होती है तो एग्जाम का फोबिया होता है, फिर हमारे ऊपर प्रेशर होता है टीचर्स का, पेरेंट्स का, कि इतना मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए एग्जाम का डर रहता है। और फिर मतलब उन लोगों ने ऐसा समझाया था कि ऐसे सबका सुनने का लेकिन दिमाग पे नहीं लेने का, ऐसा बताया था उन्होंने। तो और थर्ड, आप बोलो थर्ड क्या होता है? हाँ, थर्ड लेक्चर में इंग्लिश का लेक्चर था, उसमें सब समझाया था कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमारी वर्ल्ड लैंग्वेज है, इसलिए हमें वो सीखना जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश तो एवरीवेयर है, तो इंग्लिश आती होगी तो हम कुछ भी कहाँ भी कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं पे पीछे नहीं रह पाएंगे, इंग्लिश आता है तो। वेरी वेरी गुड। और एग्जाम का फियर किसको होता है, फोबिया किसको होता है? हाँ नोबडी। दीपकांत जी, प्रदीप दादा, हाँ जी। क्या बात है, वेरी गुड। बच्चे आप सब दादा का बच्चे है इसलिए फोबिया नहीं होता है एग्जाम। वेरी गुड, ओके, जय सच्चिदानंद। तो अभी तो प्रदीप दादा ने बताया ऐसा, शक्ति शक्ति शक्ति, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, दादा दादा दादा। ओके ओके, अभी आज तो नया एक मासी आया है, आज तो वैशाली मासी आई है, तो हमको पद, एक मिनट, हाँ पद